मेरा भरोसा परमेश्वर पर है, तो कैसे मेरे प्राण से कह सकते हो पक्षी के समान अपने पहाड़ पर उड़ जा। क्योंकि देखो, दुष्ट अपने धनुष चढ़ाते हैं और अपने तीर धनुष की डोरी पर रखते हैं कि सीधे मन वालों पर अंधियारे में तीर चलाएं। यदि नींव ढा दी जाए तो धर्मी क्या कर सकता है। परमेश्वर अपने पवित्र भवन में है, परमेश्वर का सिंहासन स्वर्ग में है। उसकी आंखें मनुष्य की संतान को नित्य देखती रहती है और उसकी पलकें उनको जांचती है। यहोवा धर्मी को परखता है, परंतु वह उनसे जो दुष्ट हैं और उपद्रव से प्रीति रखते हैं अपनी आत्मा में घृणा करता है। वह दुष्टों पर फंदे बरसाएगा, आग और गंधक और प्रचंड लू उनके कटोरों में बांट दी जाएगी। क्योंकि यहोवा धर्मी है, वह धर्मी के कामों से प्रसन्न रहता है। धर्मी जन उसका दर्शन पाएंगे। In the Lord I put my trust. How can you say to my soul, flee as a bird to your mountain? For look, the wicked band their bow, they make ready their arrow on the string, that they may shoot secretly, and the upright in heart. If the foundation are destroyed, what can the righteous do? The Lord is in his holy temple, the Lord's throne is in heaven. His eyes behold, his eyelids test the sons of man. The Lord tests the righteous, but the wicked and the one who loves violence his soul hates. Upon the wicked he will rain coals, fire and brimstone, and a burning wind shall be the portion of their cup. For the Lord is righteous, he loves righteousness, his countenance beholds the upright. अजीजों, आप सबका मैं स्वागत आज की इबादत के अंदर करता हूँ। आप सभी को जय मसीह की। ग्रीटिंग्स टू यू ऑल इन द मैचेस नेम ऑफ आवर लॉर्ड एंड सेवियर जीसस क्राइस्ट, एंड वी वेलकम यू ऑल इन दिस वर्शिप सर्विस। और जैसा कि मीडिया के माध्यम से हम लोग सब एक साथ जुड़े हुए हैं, वर्शिप को अटेंड कर रहे हैं, परमेश्वर से हम नज़दीकी बढ़ाते हैं। और अभी तक कोई भी जो वर्शिप हमारी ब्रेक नहीं हुई है, परमेश्वर का ये वास्तव में धन्यवाद है। और परमेश्वर निरंतर महिमा पाता रहे और परमेश्वर की स्तुति हमारे जीवन के द्वारा होती रहे। आइए आज की वर्शिप शुरू करने से पहले हम लोग प्रार्थना करें। धन्य से शक्तिमान पिता परमेश्वर, एक बार फिर धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए जो आपने हमें दिया। आप महान परमेश्वर है पिता। आज की जो संडे वर्शिप है पिता, वो आपको ग्रहण योग्य हो। हम दुआ चाहते हैं और मिन्नत करते हैं पिता, आपकी ब्लेसिंग सब सबके ऊपर बनी रहे। And Lord, today's worship will be acceptable unto you, and you will be glorified through our deeds and through our actions, Lord. And also pour out your abundant blessings upon us. We commit today's worship, each and everything into your mighty hand, and we ask this prayer in Jesus' most precious name. Amen. अजीजों, ये वक्त होगा कि हम परमेश्वर की आराधना करेंगे और अपने पहले गीत को गाएंगे, जो कि पाया जाता है गीत की पुस्तक हिंदी मेथोडिस्ट के अंदर 208। आइए हम सब इकट्ठे होकर इस गीत के अंदर शामिल हो जाएं। तेरे
माध्यम से कि हमने परमेश्वर की परस्तिश करा, परमेश्वर को हमने मुबारक कहा, और अब ये वक्त होगा कि हम अपने ईमानों का इकरार भी परमेश्वर के आगे करेंगे. And let us unite in this historic confession of Christian faith, which is found in the Methodist English book, page number 738, and in Hindi, page number 1. Let us unite in this historic confession of Christian faith. I believe in God the Father Almighty, maker of heaven and earth, and in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, dead and buried. The third day He rose again from the dead. He ascended into heaven and seated at the right hand of God the Father Almighty. From thence He shall come to judge the quick and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the resurrection of the body, and the life everlasting. Amen. अजीजों, अब ये वक्त होगा रेस्पॉन्सिव रीडिंग का, और हम लोग निकाल लेंगे अपने उत्तरवादी पाठ को. भजन संहिता उसका 50वां भजन 1 से लेकर 23 वचन तक. For today's responsive reading has been taken from the book of Psalms, number 50, verses beginning from 1 to 23. The book of Psalms, number 50, verses beginning from 1 to 23. First verse I will read, and the second verse you will be joining in responsive reading. The mighty one God, the Lord, hath spoken, and called the earth from the rising of the sun to its going down. Out of Zion, the loveliness of His beauty. Our God shall come and shall not keep silent. A fire shall devour before Him, and it shall be very tempestuous all around Him. He shall call heaven from above, and the earth to judge His people. Gather my saints together to me, those who have made a covenant with me by sacrifice. And the heavens shall declare His justice, for God He judges. Hear, O my people, and I will speak, O Israel, and I will testify against you. I am God, your God. I will not rebuke thee for thy sacrifices, and thy burnt offering are always in my sight. I will not take a bull from your house, nor goats out of your folds. For all the beasts of the woods are mine, the cattle on the hills and the sea. I know of the birds of the mountains, and the wild beasts of the field are mine. If I should be hungry, I would not tell thee, for the world is mine, and the fullness thereof. Will I eat the flesh of bulls or drink the blood of goats? Offer to God the sacrifice of praise, and pay them dues to the Most High. Call upon me in the day of trouble, I will deliver you, and you shall glorify me. But to the sinner God hath said, why dost thou declare my justice, and take my covenant in thy mouth? Seeing you hate instruction and cast my words behind you, If thou didst see, if thou didst run with him, and with other trees who had been broken. you give your mouth to evil and your tongue frame deceit. Sitting thou didst speak against the brothers, and didst set they as skeleton against the mother's son.
These things you have done, and I kept silent. You thought that I was altogether like you, but I will rebuke you and set them in order before your eyes. Understand these things, you that forget God, lest he snatch you away, and there be none to deliver you. And the last word we will read all together. Whoever offers praise glorifies me, and to him who orders his conduct aright, I will show the salvation of God. Let us sing Glory Patria all together. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Ghost. And it was in the beginning, is now, and ever shall be, the world without end. Amen. Amen. God bless you all. Now it's time to put our supplications before God. और ये वक्त होगा कि हम अपने supplications, अपनी विनती, अपनी प्रार्थनाओं को परमेश्वर के सामने रखेंगे. And we will pray for our church, for the members, and for our conference leaders, for our pastors and the families. And we will pray for our nation, the state, and the present situation which are going on in our society around us. And we will pray for all of them, those who are sick. And we will pray for those who are going to celebrate their birthdays, their wedding anniversaries during this week. And may God bless us all. Let us look to God in prayer. Let us bow down our heads and close our eyes and look to God in prayer. धन्य से शक्तिमान पिता परमेश्वर, एक बार फिर आपका धन्यवाद देते हैं आपकी महानताओं के लिए, आपकी दया के लिए जो नाम बनाम हमारे जीवन के ऊपर बनी रहती है पिता. हम दुआ चाहते हैं खास तौर से आज की इबादत के लिए, जबकि आज पिता ये संभव होने पाया कि हम आपकी इबादत को करते हैं. हम तो पापी हैं पिता, और हम अपने पापों के कारण आपके सामने आपकी प्रेजेंस में नहीं आ सकते. बट लॉर्ड, यू सेंट योर सन जीसस क्राइस्ट फॉर अस, and he sacrificed himself on the cross, and he died and he resurrected for us, and he made us conquer on every evil things, Lord. And thank you, God, for this such wonderful privilege that you have given us through Jesus Christ, and you accepted us as your co-heirs, your darling son, your darling daughters, Lord. Thank you for the such agape love that you bestowed upon us and manifested upon us through Jesus Christ. Lord, we especially pray for our church and each and every organizations of our church. We commit into your mighty hand, Lord. Lord, bless them abundantly. We commit every chairpersons of every organizations of our church into your mighty hand, Lord. And Lord, be with them and guide them, Lord. And along with your family, bless them, Lord. And we also pray for, Lord, our youth, our leaders, those who are very dedicated and those who are working, Lord, for your glory. Be with them, and Lord, also bless them abundantly, Lord. We pray for especially those youngsters, those who are seeking their jobs, services, Lord, and also those who are unemployed and they are sitting on their houses. We pray for them, Lord. Lord, open the ways and open the doors for them so they may have good jobs, good services, and on their duties, on their responsibilities, on their job, they will glorify your name. And Lord, they will bless and they will become the channels of blessing to others as well. And Lord, we pray for our Pastor Sahab, Reverend Dr. John R. Vishwas and his marvelous leadership. And Lord, we pray for his family. We commit both of them into your mighty hand, Lord. Be with him, and Lord, keep him safe, Lord, from every harm and from every danger. We pray for his leadership, Lord. And Lord, we are very thankful to you that you have given him such kind heart and concerning heart. Lord, also pour out your abundant blessings upon him. And as he is going to share your words with us, Lord, he won't speak, but send your Holy Spirit to him, and your Holy Spirit will speak through him, Lord, to us. And Lord, we especially pray for today's, Lord,
today's sermon, as your servant is going to share. Lord, be with me also, and Lord, your will be done through my life. And also, I pray and I commit myself and my family into Almighty hand as well. I pray for Reverend Mankumar Rai, and Lord, we pray for his family also. We commit into Almighty hand. As Lord, we know that his wife is not well and found positive COVID-19. Lord, be with her, and Lord, heal her. And also, Lord, pour out your healings upon her, Lord, and keep them and protect them safe from every harm and from every danger. And Lord, we know that we are your people, and we know that we are your treasured possession, your own people, Lord. And we know that your presence always abides with us. And thank you, God, for such wonderful promises that you fulfill in our lives. And Lord, we pray for our conference leaders, our bishop sir and his family. We commit into Almighty hand, and each and every leader, those who are running executing our conferences, Lord, we commit them also into Almighty hand along with their families. Bless them abundantly, Lord, and also protect them from every harm and from every danger as well. Lord, we pray for those who are sick. लॉर्ड, हम उनको भी आपके हाथों में देते हैं, जो बीमार हैं उनको भी आप चंगाई दें, और पिता जो कि कोविड से जो ग्रसित हैं उनको भी आप छुटकारा दें लॉर्ड, क्योंकि हम जानते हैं परमेश्वर की फ्रीडम आपके हाथ में है, लिबर्टी, रेमेडी और हर सोल्यूशन आपके हाथों में है लॉर्ड। और हम प्रार्थना करते हैं आपकी चंगाई उनके ऊपर बरसे, और पिता वो आपके नाम को जाने, आपके अद्भुत नाम को जानने वाले हो सके। हम प्रार्थना करते हैं प्रेजेंट सिचुएशन के लिए, जो कि कोविड पिता बढ़ता ही जा रहा है और चर्चेस बंद हैं। हमारा आपसे निवेदन है और रिक्वेस्ट है पिता, जो भी ये जो सिचुएशन है पिता, इसको आप दूर करें, आपका चंगाई, आपका हाथ पिता इस समाज पर, पूरे दुनिया के ऊपर बनने वाला हो सके। और जो भी गलतियां पिता हम सबसे हुई हो, हमें आप क्षमा करें, और उनकी तरफ से भी हम क्षमा मांगते हैं पिता, जो अपनी गलती करके भूल बैठे हैं उनको भी आप क्षमा करें। और पिता आपका पवित्रता का बाड़ा हमारे चारों ओर बांधे। हम प्रार्थना करते हैं हमारी स्टेट के लिए, हमारे नेशन के लिए, इंडिया के लिए। हम प्रार्थना करते हैं हमारे जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनके लिए, उनको भी आप आशीर्वाद कर दें। और पिता आप अपनी किंगडम को इस्टेब्लिश करें और अपनी विल को आप दर्शाएं, आपकी हार्मनी, आपकी सॉलिडेरिटी पिता इस नेशन के ऊपर और हमारे बीच में आने वाली हो सके। और पिता हम प्रार्थना करते हैं हमारे चर्च में जो बीमार पाए जाते हैं उनको भी साथ रहें, उनको भी आप आशीर्वाद बरकत दें, उनको भी चंगाई दें। हमारे बुजुर्गों को हम आपके हाथों में देते हैं, उनको भी आप ठीक ठाक और महफूज रखें पिता, और उनको भी उनकी सारी चीज़ों से आप मुहैया करवाएं। हम प्रार्थना करते हैं जो अपने बर्थडे एनिवर्सरीज को मनाने जाते हैं इस वीक के दौरान उनके भी साथ रहें। और हम प्रार्थना करते हैं और धन्यवाद देते हैं उनकी डेडिकेटेड लाइफ के लिए, जबकि पिता आप उनको इस चर्च में इस्तेमाल करते हैं हर एक एक्टिविटीज़ के अंदर, उनके साथ भी रहें, उनको भी आप आशीर्वाद करें। हम प्रार्थना करते हैं आज के सरमन के लिए भी पिता, एक बार फिर पिता आज का सरमन भी हम आपके हाथों में देते हैं, आपको एक्सेप्टेबल हो और हम बहुत कुछ सीखने वाले हो सके। और पिता आपकी आत्मा आप मेरे द्वारा बात करने वाला हो पिता। धन्यवाद देते हैं हमारी प्रार्थना सुनने के लिए पिता, और हम मांग लेते हैं हमारी इस प्रार्थना को आपके इकलौते बेटे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मुबारक नाम में, जिसने हमें ये प्रार्थना करना सिखाया। Our Father who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us, and do not let us fall into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, power and the glory, forever and ever. Amen. अजीजों, अब ये वक्त होगा कि हम परमेश्वर के कलाम में से सुनेंगे, और जो कि लिया गया है याकूब की पत्री उसका 4 अध्याय 11 से लेकर 17 वचन तक। For today's scripture portion has been taken from the epistle of James chapter 4 verses beginning from 11 to 17, and English reading will be led by Mr. Julius Wilson. Hindi reading will be led by
Mr. Alexander Wilson, and Nepali reading will be led by Mr. Ajay Tamam. बाइबल में से याकूब की पत्री उसका 4था अध्याय और उसकी वर्स 11 to 12 पढ़ूंगा। हे भाइयों, एक दूसरे की बदनामी ना करो। जो अपने भाई की बदनामी करता है या भाई पर दोष लगाता है, वह व्यवस्था की बदनामी करता है और व्यवस्था पर दोष लगाता है। और यदि तू व्यवस्था पर दोष लगाता है तो व्यवस्था पर चलने वाला नहीं, पर उस पर हाकिम ठहरा। व्यवस्था देने वाला और हाकिम तो एक ही है, जो बचाने और नाश करने में सामर्थ है। पर तू कौन है जो अपने पड़ोसी पर दोष लगाता है? प्रभु के वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। Morning Church. Today's scripture reading is taken from James chapter 4 verses 13 to 15. James chapter 4 verses 13 to 15. Come on, you who say today or tomorrow, let's go into the city and spend a year there and trade and get again. Whereas you don't know what your life will be like tomorrow, for what is your life? For you are a vapor that appears for a little time and then vanish away. For you ought to say, if the Lord wills, we will both live, do this or that. This is the word of the Lord. जय मसीह। तपाईहरु सबैजनालाई आज हामी बाइबल पाठ गर्नेछौँ याकुब 4 को 16 र 17 पद अनुसार। तर अहिले तिमीहरू आफ्ना आफ्ना सेखीमा घमण्ड गर्दछौ। यस्तो सबै घमण्ड खराब हो। यसकारण जसले भलाइ गर्न जानिकन पनि गर्दैन, त्यसलाई पाप लाग्छ। हुन्छ, वचन पढाइ र सुनाइमा हामी सबैलाई परमेश्वरले आशीष दिएका हुन्। अजीजों, ये वक्त होगा हमारे दूसरे गीत का, जिसमें पहली हमारा ऑफरिंग हम कलेक्ट करेंगे परमेश्वर के लिए। एंड द फर्स्ट ऑफरेटरी विल बी टेकन बिकॉज इट इज फर्स्ट संडे ऑफ द मंथ एंड एज पर द ट्रेडिशन वी ऑलवेज कलेक्ट आवर ऑफरिंग, फर्स्ट ऑफरिंग एंड आवर सेकंड ऑफरिंग ड्यूरिंग दिस फर्स्ट संडे ऑफ द मंथ। एंड वी विल फॉलो द सेम ट्रेडिशन, द सेम रूल, एंड at our homes we will offer our offerings to God and we will collect, and when the church will open we will come and we will submit our offering on the feet of the Lord. हिंदी मेथोडिस्ट बुक की किताब में से 186, जैसा मैं हूँ बगैर एक बात, जैसा मैं हूँ बगैर एक बात, और इसमें हम अपने फर्स्ट ऑफरिंग को कलेक्ट करेंगे। आइए हम इस गीत के अंदर शामिल हों। जैसा मैं हूँ बगैर एक बात, तेरे लबों से हया, और तेरे नाम में है नज़ा। मसीह मसीह मैं आता हूँ। जैसा मैं हूँ कंगाल बदकार, कमज़ोर नालायक और लाचार, अब तेरे पास है मददगार। मसीह मसीह मैं आता हूँ। जैसा मैं हूँ कमबख्त नापाक, और मेरी हालत दहशतनाक, लड़ाई भीतर
मसीह मैं आता हूँ, जैसा मैं हूँ कबूल कर ले, मुआफ़ी और तसल्ली दे, सिर्फ तेरे ही वसीले से मसीह मैं आता हूँ, जैसा मैं हूँ तेरा प्यार मुझको उठावेगा हर बार और बरकत देगा बेशुमार, मसीह मैं आता हूँ। अजीजों, अब ये वक्त होगा परमेश्वर के वचन को सुनने का मेरे द्वारा, और आइए हम अपने दिलों को तैयार करें और परमेश्वर के वचन को हम लोग सुनें। My precious friend, once again I greet you in the most precious name of our Lord and Savior Jesus Christ. And after a very long time that God has given me this such wonderful opportunity to share His living words with you all. And also I would like to extend my gratitude towards God Almighty that He enabled me and He shaped my life in such a way where His will be already done. And also I would like to thank and extend my gratitude towards our senior pastor, Reverend Dr. John Vishwas, that he has told me to share the word of God on this Sunday, first Sunday. And thank you for such wonderful time for this moment. और मैं धन्यवाद देता हूँ इस समय के लिए जब ये समय मैं वचन के साथ आपसे बात करूँगा. Let us pray before we start. Thank you, dear gracious Heavenly Father, for the wonderful time once again that you have given me. And Lord, as I am going to share your words with your people, I want to speak, Lord, but send your Holy Spirit to me. So, Lord, your Holy Spirit will speak through us and give us the spirit of comprehension so we may grab your words in our life and we may apply and we may bring 100-fold of fruit when you will come. And Lord, also make us the channels of blessings to us. Thank you, God, for hearing our prayer. We ask this pray in Jesus' most precious name. Amen. अजीजों, जैसा कि आज का जो पाठ जो पढ़ा गया आपके सामने जेम्स में से उसका 4था अध्याय 11 से लेकर 17 वचन तक, और आज हम लोग सीखेंगे परमेश्वर के वचन में से कि परमेश्वर क्या हमसे बात करना चाहता है. और सबसे पहले आज का जो वचन है, मैं इसको शुरू करने से पहले एक कहानी के साथ इसकी मैं शुरुआत करना चाहता हूँ. एक बार एक विलेज का, और उस गांव के अंदर आप सोच सकते हैं कि कितनी कौन कौन से रिचुअल्स होते हैं, ट्रेडिशंस, और जो लोग होते हैं वो ज़्यादा ब्रॉड माइंडेड नहीं होते, मगर हाँ अपने उसमें ही वो सीमित रहते हैं. और बहुत सारे जो प्रथाएं हैं वहाँ पर चलती है, अंधविश्वास वहाँ पर चलता है. तो आप एक विलेज का एक सिनेरियो या एक सीन इमेजिन कर सकते हैं. और वहाँ पर एक बुजुर्ग महिला, आप कह सकते हैं शी वॉज अराउंड 45 years or maybe 50 years old, and she used to live in that village, and she was very poor, or she was the labor class woman. और वहाँ पर वो अपने जो पैसा अर्न करती थी वो लेबरिंग करती थी, मजदूरी करती थी, और बड़ी मुश्किल से एक वक्त का खाना वो चुका सकती थी. तो एक दिन क्या होता है, जब वो उनके बीच में रह रही होती है तो एक जवान लड़का आता है. और वो जवान लड़का जब आता है और वो भी क्या कहते हैं अच्छे कपड़े, आप कह सकते हैं कि ठीक है लिटिल बिट इट वाज गुड बट एवरेज बट नॉट सो मच गुड. मगर वो जब आता था और वो उस लेडी से मिलने जाता था, और जब वो लेडी से मिलने जाता था तो उसके लिए खाना भी ले जाता होगा और बहुत सारी चीज़ें ले जाता होगा.
और जब वो मिलता था और फिर वो वापस अपने घर को चला जाता था। ये लोग जो गांव वाले थे ये उस चीज़ को, उस इंसिडेंस को ऑब्जर्व कर रहे थे और वो कह रहे थे कि ये लड़का रोज़ रोज़ आता है और इस लेडी से मिलता है, अपना टाइम 1-2 घंटे स्पेंड करता है और वापस चला जाता है, क्या बात है। और फिर वहाँ पर क्या हुआ, रूमर्स होना शुरू हुआ, गॉसिप्स होना शुरू हुआ और उस गॉसिप्स के अंदर, उस चुगली के अंदर, उसके अंदर वो क्या कहते हैं, उनकी बदनामी करने लगे। और जब वो बदनामी करने लगे और क्या कहते हैं, जो गांव की औरतें थी वो ये कहती थी कि ये बच्चलन है, ये औरत वास्तव में देखो कितनी बड़ी उम्र की है और अपने से कम उम्र वाले लड़के के साथ यहाँ पर रहती है, आइडेंटिटी करती है, व्यभिचार करती है। तो ऐसे ही जो रूमर था वो पूरे गांव में फैल गया और एक दिन जो गांव के एल्डर्स थे एंड दे डिसाइडेड टू किल बोथ ऑफ देम, टू पनिश बोथ ऑफ देम। उन्होंने अपनी रीति के अनुसार जैसे ही वो लड़का आया, वो सब ताक में थे और जैसे वो लड़का आया उस लड़के को पकड़ लिया और क्या कहते हैं, उस औरत को भी पकड़ा, उनको घर से खींच के बाहर निकाला, उनको जंजीरों से बांध दिया और वो चिल्लाते रहे, वो चीखते रहे, वो कह रहे हैं हमारी बात सुनो, हमारी बात सुनो, मगर उनमें से किसी ने भी उनकी बात नहीं सुनी और उनको लाठियों से पीटा, लाठियों से पीट कर उन दोनों को मार डाला। एंड देयर बॉडीज वर थ्रोन आउटसाइड ऑफ द विलेज। उनकी बॉडीज जो थी गांव से बाहर फेंक दी गई और वहां पर उन्होंने ये सीना ठोक कर कहा, देखा हमने कितना अच्छा जजमेंट किया, इन दोनों व्यभिचारियों को हमने मार दिया। That was the gossips were going on around this village. और सिर्फ इतना ही नहीं हुआ, परमेश्वर का क्रोध उस गांव पे भड़का और वहां पर महामारी आई और जब वहां पर महामारी आई तो काफी लोग उस पेंडेमिक सिचुएशन से, डिजीज से वहां पर मरना शुरू हुए। उसके डर के मारे कई लोग माइग्रेट हुए, कई लोग उस गांव को छोड़कर जाने लगे और रास्ते में भी वो जो लोग जो छोड़कर जा रहे थे वो भी मारे गए और उसमें से जो जनरेशन बची वो चली गई। मगर काफी पैथेटिक सिचुएशन के अंदर ये विलेज था एंड दैट वाज द ड्रास्टिक सिचुएशन एवर हैड दैट काइंड ऑफ विलेज। और फिर उन्होंने ये कहा कि ये परमेश्वर का प्रकोप है, परमेश्वर का प्रकोप है, वो ये कहना उन्होंने शुरू किया। कई सालों के बाद वहाँ पर 2 जने थे, 2 डिवोटीज, आप कह सकते हैं सेंट्स। वो जब उस विलेज के अंदर आए उन्होंने कहा कि आइए हम देखते हैं, इसके रीज़न को हम फाइंड आउट करते हैं कि क्या रीज़न है कि ये जो गांव है बर्बाद हो गया। और जब वो फाइंड आउट कर रहे थे तो उन्होंने बहुत सारी गॉसिप्स को सुना और उन्होंने ये भी सुना कि 2 यहाँ पर व्यभिचारी थे, उनकी वजह से ये ऐसा हुआ और उनको परमेश्वर, हमारा भगवान इसलिए नाराज़ है, हमारा परमेश्वर इसलिए नाराज़ है कि हमने उनको लाठियों से पीटा, बल्कि उनको हमें जला देना चाहिए। You see what kind of situation was that? क्या आपने देखा कि किस तरीके की ये एक परिस्थिति गॉसिप्स के कारण उत्पन्न हुई थी। और फिर उन डिवोटीज को तब भी यकीन नहीं हुआ। वो डिवोटीज ने डिसाइड किया, उन सेज ने डिसाइड किया दैट वी शुड गो एंड वी शुड एंटर इनटू द हाउस ऑफ दैट लेडी। हमें उस लेडी के घर के अंदर प्रवेश करना है और देखना है कि वास्तव में माजरा क्या था। और जब उन्होंने उसके घर में प्रवेश किया, as they entered into the house of that woman, they saw one letter. उन्होंने एक लेटर को देखा और उस लेटर के अंदर जब उन्होंने पढ़ा तो उनकी आंखें भर आई, वो रोने लगे। उस लेटर के अंदर ये लिखा था, My mother is the bestest mother in the world, and very soon I will take you with me. Our sufferings are finished by the grace of God. मेरी जो माँ है वो संसार की सबसे अच्छी माँ है और अब जो मैं यहाँ पर आ रहा हूँ, मैं तुम्हें अपने साथ लेके जाऊँगा। हमारी जो सफरिंग्स थी वो एंड हो गई, हमारी सफरिंग्स परमेश्वर की दया से खत्म हो गई, क्योंकि वो जो व्यक्ति था, वो जो बच्चा था, वो उसकी माँ थी और वो जो बेटा था वो दूसरी सिटी के अंदर मजदूरी का काम करता था और जब वो आता था तो वो अपनी माँ से मिलने आया करता था।
और डेली अपनी माँ से मिलकर वो चला जाया करता था। कैन यू इमेजिन दैट हाउ फार सिलेंडर इज डेंजरस? कितना जो बदनामी है या गॉसिप्स है वो कितनी बुरी होती है, दूसरों की जान तक को वो ले लेती है, नहीं सुनती। और यहाँ पर जो मेजॉरिटी है दे बिकम जजमेंटल एंड दे स्टार्टेड टू प्लॉट टू किल another person just to show off their pseudo gossips or unauthentic proof against the person. Today we're going to deal with the topic which I have taken called surrender. Slander, that means in Hindi बदनामी। बदनामी इसका मतलब होता है कि जब हम किसी को अपने गॉसिप्स के कारण बदनाम करते हैं, अपने आप को प्रूफ करने के कारण हम किसी को बदनाम करते हैं कि हम प्रूफ हो जाएं, और आप यकीन मानिए हम किसी का कंसर्न नहीं जानते जिसके लिए हम बदनाम कर रहे हैं, जिसके बारे में, जिसके विषय में हम कह रहे हैं। और आज का टॉपिक जो हमें बताएगा कि ये कितना नुकसानदायक हो सकता है, इसके कॉन्सिक्वेंसेस कितने नुकसानदायक हो सकते हैं। आइए हम परमेश्वर को देखें कि वो आज हमें क्या सिखाना चाहता है। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन वी look upon the background of this letter, which was taken from the epistle of James chapter 4 and verse 11 to 17. The letter of James was not addressed to the particular person or particular community. It was intended to encourage and challenge the Christian everywhere. ये आज भी हमें चैलेंज करता है ये लेटर, और जितने भी मसीह लोग हैं पूरे संसार के अंदर ये लेटर उनको चुनौती देता है। It offers a guide to practical Christian living and addresses like favoritism, groupism, temptation, controlling the tongue, wisdom, submission, character, wealth, patience, prayer, and healing. It is traditionally believed that this letter was written by James, the worldly brother of Jesus Christ, in around 49 AD. The letter is probably written in Jerusalem, copied and carried to all the churches. और ये यरूशलेम में 49 AD में लिखा गया होगा, probably around। और ये ट्रेडिशनल एक मान्यता है कि ये लिखने वाला ये प्रभु यीशु मसीह का वर्ल्डी यानी संसारिक भाई था। और for today's portion talks about slander, which I already told you that I am titled as slander। और हम देखते हैं कि slander क्या होता है, बदनामी क्या होती है। What is the definition of slander given in the Bible? The world is practicing truth less and less. They are changing the definition of truth. वो सत्यता की जो परिभाषा है उसको बदल रहे हैं to fit out their own benefits and profits and their purposes। क्यों करते हैं कि वो अपने स्वार्थ को चाह सकते हैं, या फिर हो सकता है वो अपने उद्देश्य को पूर्ण तरीके से पूरा करते हैं। In which we play with the truth and many times we ignore truth. The reason may be political or religious। रीजन कुछ भी हो सकता है, कुछ भी कारण हो सकता है कि जब हम ट्रुथ को या सच्चाई को छुपाते हैं या सच्चाई को हम इग्नोर करते हैं, कुछ भी कारण हो सकता है। Misinterpreting truth to attack another person's character and reputation is what is happening in Paul and Caesarea। यहाँ पर जब हम देखते हैं कि जो ट्रुथ है उसको जब हम छुपाते हैं, ये एक डायरेक्ट अटैक होता है या इनडायरेक्ट अटैक आप कह सकते हैं किसी ऐसे व्यक्ति पर जिसके कैरेक्टर को, जिसकी रेपुटेशन को वहां पर तोड़ा जाता है, घात किया जाता है। आप कह सकते हैं चुगली भी ये हो सकती है। और स्लैंडर का काफी सिनोनियम्स भी दे रखे हैं। इट इज लाइक गॉसिप्स, इट इज लाइक द रिवेलर्स, और इट इज लाइक द अब्यूजर्स। आप ये भी कह सकते हैं। ये एक स्लैंडर का मतलब है। और यहाँ पर जो जेम्स है वो यही अप्रोच कर रहा है अपने लोगों को, कलीसिया को, और वो ये कह रहा है, हे भाइयों, एक दूसरे की बदनामी ना करो। जो अपने भाई की बदनामी करता है या उस पर दोष लगाता है
वह व्यवस्था की बदनामी करता है और व्यवस्था पर दोष लगाता है। और यदि तू व्यवस्था पर दोष लगाता है तो व्यवस्था पर चलने वाला नहीं पर उस पर हाकिम ठहरा। Which means we consider and we put Bible, the laws of God into our pocket. हम जेब में रख लेते हैं क्योंकि ये साफ साफ परमेश्वर ने कहा है अपने आज्ञाओं के अंदर, जो कि पाया जाता है एक्सोडस चैप्टर 20 and verse 16, कि तू अपने पड़ोसियों के प्रति झूठी साक्षी ना देना। You shall not bear the false witness against your neighbor. And this is written in the Bible. And that's why James, quoting that you destroys and you spoils the image of the laws and the commandments of God. तू परमेश्वर की कमांडमेंट को, उसकी आज्ञाओं को क्या करता है? डिस्ट्रॉय, उसकी इमेज को कर देता है। और यही सिलेंडर का यहाँ पर मतलब दिया गया है अजीजों। Let us take the study upon the cylinders and realities and its effects in the Bible. सिलेंडर के बारे में यानी बदनामी के बारे में बाइबल क्या बताती है, क्या कहती है जब हम किसी के प्रति गॉसिप करते हैं, और बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से बाइबल बताती है। और पहली जो चीज हम लेते हैं, सिलेंडर्स रियलिटी एंड फैक्ट्स इन द बाइबल। और यहाँ पर पहली जो फैक्ट बात है, जो कि एक ट्रू फैक्टर है या रियलिटी है सिलेंडर का, वो है सिलेंडर इज सिंफुल। यानी जो बदनामी होती है या बदनामी करना होना होता है, वो क्या है? पापमय है। इट इज सिंफुल एंड इट इज रिटन इन मार्क चैप्टर 7 verse 21 to 23, यानी मरकुस रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय उसके 21 से लेकर 23 वचन में साफ साफ लिखा हुआ है, For from within out of the heart of man come evil thoughts, sexual immoralities, theft, murder, adultery. And verse 22, coveting, wickedness, deceit, sensuality, envy, slander, pride, foolishness. Verse 23, all these evil things come from within and they defile a person. यानी सिलेंडर भी एक पार्ट है, एक पापमय जीवन का। और वो कहां से आता है? हमारे अंदर से आता है, क्योंकि वचन भी ये कहता है अजीजों कि जो पाप उत्पन्न होता है वो हमारे अंदर से उत्पन्न होता है, जो कि हमारी आत्मा को, हमारे शरीर को डिफाइल कर देता है, अशुद्ध कर देता है। और जब हम देखते हैं ये जो इंसिडेंट्स मैंने आपको एक विलेज का बताया, यहाँ पर क्या था? लोगों ने एक विचारधारा अपना ली, उनकी एक्टिविटीज को देख के उन्होंने वो जजमेंटल हो गए, उन्होंने उस चीज को एक रिचुअलिस्टिक तरीके से ले लिया, उन्होंने उसको खुदा की ओर से जोड़ दिया, बजाय इसके कि वो जाते, पूछते, कंसल्ट करते, ताकि वो स्त्री अपना एक्सप्लेनेशन देती, बताती। मगर नहीं, दे प्लॉटेड, उन्होंने क्या किया? योजना बनाई। दे प्लान्ड एवरीथिंग टू किल बोथ ऑफ देम, उन दोनों को मारने की उन्होंने योजना बनाई। They were cried, they were weeping in front of them. वो रो रहे थे, चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, मगर फिर भी उनको लाठियों से मार दिया गया और उनकी बॉडीज को बाहर फेंक दिया गया। Can you say that? Can you imagine that how far the slender is very much dangerous? कितना एक खतरनाक होता है ये पार्ट, जहां पर किसी की रेपुटेशन के बारे में, किसी के कैरेक्टर के बारे में फॉल्स विटनेस या फॉल्स तरीके से बताया जाता है, उस पर उंगली उठाई जाती है। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, इट डिफाइल्स अ पर्सन। ये क्या करते हैं? व्यक्ति को अशुद्ध करता है, उसको खत्म कर देता है, और नतीजा ये होता है कि हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। We can see also in Jeremiah chapter 9 verse 4 to 6, Ezekiel chapter 22 verse 9, Romans chapter 1 verse 29 and 31, and also 2 Corinthians chapter 12 verse 20, 2 Titus, 2 Timothy chapter 3, 2 and 4। और यहाँ पर सिलेंडर के बारे में बता रखा है कि ये क्या होता है और कैसे ये डिफाइन करता है पर्सन को, बिकॉज सिलेंडर इज सिंफुल। फिर दूसरी चीज हम देखते हैं, सिलेंडर इज फॉरबिडन, यानी
जो बदनामी है ये बाइबल मना करती है करने के लिए, गॉसिप्स मना करती है करने के लिए। और जो कि पाया जाता है लेविटिकस यानी लेवी व्यवस्था उसका 19वां अध्याय उसका 16वां वचन, और यहाँ पर लिखा हुआ है You shall not go around as a slanderer among you, your people, and you shall not stand up against the life of your neighbors. I am the Lord. यहाँ पर साफ कहता है तुम्हें अन्य लोगों के विरुद्ध चारों ओर अफवाहें फैलाते हुए नहीं चलना चाहिए। ऐसा कुछ ना करो जो तुम्हारे पड़ोसी के जीवन को खतरे में डाले, मैं यहोवा हूं। और यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है do not do this such kind of evil things because it is sinful, it is forbidden by God. मगर फिर भी हम इग्नोर करना शुरू कर देते हैं, इस प्रोहिबिशन को हम इग्नोर करते हैं, हम ओवररूल करते हैं परमेश्वर की इच्छा को, और हम गॉसिप्स करते हैं, हम लोग किसी को बदनाम करने के लिए पूरी कसर निकाल देते हैं। मैं आप लोगों की बात नहीं कर रहा, मैं मेरी बात नहीं कर रहा, मैं मसीहों की बात नहीं कर रहा, मगर ऐसे कई लोग हमारे चारों ओर भी पाए जाते हैं जो इस तरीके की बातों को करते हैं। फिर यहाँ पर एक वर्ष और है इस फॉरबिडन के बारे में, कोलोसियंस चैप्टर 3 एंड वर्स 8, यानी कुलुस्सियों की पत्री 3 और 8 के अंदर साफ साफ लिखा हुआ है But now you must put them all away, anger, wrath, malice, slander and obscene talk from your mouth. पर अब तुम भी इन सब को अर्थात क्रोध, रोष, वैरभाव, निंदा और मुंह से गालियां बकना थे, सब बातें छोड़ दो। और जब हम यीशु मसीह की टेस्टिमनी को देखते हैं, जब यीशु मसीह को जब हम देखते हैं, तो यहाँ पर एक बहुत ही अजीब चीज मिलती है कि यीशु मसीह ने अपने जीवन के अंदर, अपनी मिनिस्ट्री के अंदर बड़े बड़े कामों को कर दिया, बड़े बड़े कामों को करके दिखाया। उसने अपने आप को प्रूव किया that he was Messiah who has come to this world to give salvation to the people. मगर लोगों ने अपने फायदों के लिए, and that was mostly the Pharisees and Sadducees, अपने फायदे के लिए उन्होंने यीशु मसीह की बदनामी करना शुरू किया, because they had the such kind of tendency to speak lies against someone. वहां पर उन्होंने यीशु मसीह के रेपुटेशन को भी सोसाइटी के अंदर खत्म करना शुरू किया। उन्होंने नाना प्रकार की बातें यीशु के लिए कही। यीशु के लिए बोला कि ही इज फ्रॉम सैटन, यीशु के लिए बोला ही इज द मैजिशियन, उनके लिए बोला ये रिबेल करता है, ये रिबेलियस है, ये देशद्रोही है, ये आपके कैसर आपकी इच्छा के विरुद्ध में बोलता है। Lots of accusations they put on Jesus Christ. But at last what happened? आखिरकार क्या हुआ कि ऐसे लोग जो थे परमेश्वर का क्रोध उनके ऊपर भड़का होगा। हमें तो हिस्ट्री नहीं पता, मगर जिन लोगों ने यीशु मसीह को गालियां दी या जिन लोगों ने यीशु मसीह के बारे में बुरी बुरी बातों को कहा होगा, उनके साथ क्या हुआ? हो सकता है कि उन्होंने परमेश्वर के क्रोध को फेस किया, हो सकता है कि उन्होंने परमेश्वर के उन चीजों को फेस किया होगा, मगर ओवरऑल इट इज फॉरबिडन बाय गॉड। ये परमेश्वर के द्वारा ये बाधित है, नहीं करने का है। Exodus chapter 23 and verse 1 says, You shall not spread a false report, you shall not join hands with a wicked man to be a malicious witness. झूठी बात न फैलाना, अन्यायी साक्षी होकर दुष्ट का साथ न देना। कभी कभी लोग क्या करते हैं अजीजों, है ना, अपने फायदे के लिए एक अगर धर्मी जना भी है यानी राइचस मैन भी है, उसके बारे में झूठी झूठी अफवाहें फैलाना शुरू करते हैं, छोटी छोटी चीजों को फैलाना शुरू करते हैं। बिकॉज दिस इज द अमेजिंग फैक्ट दैट इट इज द कोर रियलिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग टेंडेंसी। मैनी टाइम्स human being takes various opportunities as grant where they backbite and gossip for others and spoils the image or reputation of the people of the individual. बहुत सारी चीजें हम यहाँ पर देख सकते हैं, मगर हम इन चीजों को भूल जाते हैं कि God commanded us not to do this.
परमेश्वर ने हमें मना किया है कि हमें नहीं करना, फिर भी हम इसके अंदर कभी कभी पड़ जाते हैं। एंड दैट वाज आवर टेंडेंसी, एंड दैट इज आवर टेंडेंसी। ये हमारी प्रकृति है, ये हमारा नेचर है। हम लोगों को मज़ा आना शुरू हो जाता है, हम लोग मज़ा करते हैं, हम लोग ठट्टा उड़ाते हैं, मगर हम ये नहीं जानते क्या सामने वाला व्यक्ति जिसके विरोध में हम ऐसी बातें कर रहे हैं वो सही है या गलत है। फिर तीसरी चीज हम देखते हैं, स्लैंडर इज डिस्ट्रक्टिव, यानी जो बदनामी करना है या गॉसिप करना है, ये क्या है, एक विनाश का कारण है। Proverbs chapter 16 and verse 27, a worthless man plots evil and his speech is like a scorching fire. उसकी जीभ क्या होती है, तीर के समान होती है ना, जिसमें से आग निकलती है और वो कोई कसर नहीं छोड़ते। फिर और हम देख सकते हैं Proverbs chapter 11 and verse 9, यहाँ पर लिखा हुआ, with their mouth the godless destroy their neighbors, but through knowledge the righteous escape. Proverbs chapter 26 and verse 28 says, a lying tongue hates those it hurts, and a flattering mouth works ruin. Proverbs chapter 30 chapter and verse 10, do not slander a servant to their master, or they will curse you and you will pay for it. For example, it will lead us to the crime, murder, broken relationships, and job loss, and also depression and stress, and ultimately it will lead us towards the destruction. जब हम किसी के बारे में नहीं जानते तो उसके विषय के अंदर हमें बातचीत भी नहीं करना चाहिए। और यहाँ पर हम साफ साफ देख सकते हैं, इट इज डिस्ट्रक्टिव, ये नुकसान पहुंचाने वाला है और दूसरों को भी नुकसान पहुंचाता है, ये रिलेशनशिप को तोड़ देता है। जब आपको पता होगा, जब शादी होती है, जब बैंड्स पढ़े जाते हैं, तो पास्टर हमेशा एक बात कहता है, यदि आपको कोई ऐसी बात पता हो, वाजिब बात, ऑथेंटिक बात, जो कि ये प्रूफ करे कि ये शादी होना लाजमी नहीं है, वैलिड नहीं है, तो आप लिखित रूप में दें, लिखित रूप में दें, प्रूफ करके दें, गॉसिप्स ना फैलाएं, क्योंकि कल को आपकी एक गॉसिप से या आपकी एक बदनामी से किसी का घर बिगड़ सकता है, किसी को चोट पहुंच सकती है, कोई मर सकता है, किसी को दिल टूट सकता है और किसी का विश्वास हिल सकता है। Do not be like a stumbling stone in front of the people, others. ये परमेश्वर हमें सिखाना चाहता है, डिस्ट्रक्टिव होता है। यहाँ पर इन दोनों को जान से मार दिया गया, लाठियों से मार दिया गया, फिर भी उनको पश्चाताप नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि परमेश्वर इसलिए नाराज था कि इनको जला के मारना चाहिए था, जला के इनको मारना चाहिए। क्या परमेश्वर की इच्छा को कभी हमने पूछा है कि उस व्यक्ति के बारे में क्या है? हो सकता है व्यक्ति गलत हो, अजीब हो सकता है व्यक्ति सही भी हो, मगर उसके गलत से उसके सही से हमें क्या लेना देना। मगर हाँ, ये चीज़ है, अगर वो गलत है तो हमें सबसे पहले रूमर्स नहीं उड़ाने, हमें उससे बैठ के बातचीत को करना है, उसके कार्यों को देखना है, उसके चाल चलन को देखना है, उसके कैरेक्टर को देखना है, तब जाकर हमें एक इमेज रखना है। लिखा है फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। मगर मैं इस बात को रिजेक्ट करता हूँ कि अगर पहला इंप्रेशन नहीं, अगर आपका लास्ट इंप्रेशन है, तो फिर परमेश्वर का कार्य उस व्यक्ति के जीवन में नहीं है, क्योंकि परमेश्वर रूपांतरित करने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर बदल देने वाला परमेश्वर है। और यही कारण है कि हम ट्रांसफॉर्म्ड हैं, यही कारण है कि हम अपने विटनेस को दूसरों के आगे रखते हैं। चौथी चीज हम देखते हैं स्लैंडर के बारे में, जजमेंट अपॉन स्लैंडरर्स, जो कि बदनामी करते हैं, उनके लिए परमेश्वर का न्याय क्या कहता है। प्रोवर्ब्स चैप्टर 21 एंड वर्स 28, नीति वचन 21-28 के बारे में लिखा हुआ है, दे विल बी पेरिश्ड एंड कैन नॉट इनहेरिट द किंगडम ऑफ गॉड। वो दंड पाएंगे और परमेश्वर के राज्य में कभी प्रवेश नहीं करेंगे।
लिखा हुआ है, a false witness will perish, but the word of a man who hears will endure. फिर Proverbs chapter 19:5 के अंदर लिखा हुआ है, a false witness will not go unpunished, and he who breathes out lies will not escape. सोचिए, परमेश्वर का जजमेंट क्या है? क्या परमेश्वर छोड़ देगा? नहीं छोड़ेगा। अगर हमारी किसी बात से किसी का नुकसान होता है, या हमारी किसी बात से किसी का दिल टूटता है, या उसके जीवन के अंदर अंधेरा आ जाता है, या वो अपने जीवन को खत्म कर लेता है, या कुछ भी होता है, तो उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ वो लोग हैं जो उसकी बदनामी बिना कारण करते हैं, बिना कारण उसकी बदनामी करते हैं। और हो सकता है ये बातें चर्च के अंदर हो रही हो, और तभी जेम्स लिखता है, कम्युनिटी को लिखता है, किसी पर्टिकुलर जने को नहीं, बल्कि ये सबके लिए है, एप्लीकेबल है। द जजमेंट अपॉन दी स्लैंडरर्स, उनके ऊपर परमेश्वर का न्याय तो आएगा ही आएगा, और 3 चीजें होंगी। वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। पनिशमेंट कुछ भी हो सकता है, जब परमेश्वर किसी भी रूप से उनको पनिश करेगा, हमें नहीं पता। और उसमें साफ साफ लिखा हुआ है, वो अपनी श्वास के द्वारा भी वो झूठी बातों को गढ़ते हैं किसी के बारे में, और यहाँ पर they will face and they will be accountable in front of God. Isaiah chapter 29 verse 20 says, 20 and 21 verse says, क्योंकि उपद्रवी फिर न रहेंगे और न ठट्टा करने वालों का अंत होगा, और ठट्टा करने वालों का अंत होगा, और जो अनर्थ करने के लिए जागते रहते हैं, जो मनुष्य को वचन में फंसाते हैं और सभा में उल्हाना देते हैं, उनके लिए फंदा लगाते हैं और धर्म को व्यर्थ बात के द्वारा बिगाड़ देते हैं, वे सब के सब मिट जाएंगे। They all will be destroyed in front of God. परमेश्वर उनके तीरों को भी नाश करेगा, तोड़ डालेगा उनके हर एक चीजों को जो वो झूठी बातें करते हैं। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ, for the ruthless shall come to nothing, and the scoffer cease, and all who watch to do evil shall be cut off. Who by a word make a man out to be an offender, and lay a snare for him who reproves in the gate, and with an empty plea turn aside him who is in the right. सबके सब मिट जाएंगे। These people will come under the curse and the judgment of God. The wrath of God they will face in their lives, along with their family. और आपको पता है, उनके आगे तक ये चलता है, संतानों के संतानों पर ये चलता है, जब तक कि वो रिपेंट नहीं करते, जब तक कि वो इन चीजों को छोड़ नहीं देते। Somehow the slanderer loses their place. They cannot inherit their house with God. Indirectly, the people will lose their salvation by their own acts against the innocent person. That's why James was writing to the community not to bear false witness against your brother. It was the 9th commandment in the book of Exodus chapter 28 verse 16. Now, how to overcome slander? हम कैसे, अगर ये हमारी प्रकृति है, तो हम कैसे इस पे विजय प्राप्त कर सकते हैं, कैसे इसको हम अपने वश में कर सकते हैं? As we know that the slander is the part of the human behavior, it is attached with the nature of human being, but with God nothing is impossible. We need to keep following things in our minds to overcome slandering nature. And first thing is committing one's cause to God. Committing one's cause to God. Psalms number 122 and verse 2. Deliver me, O Lord, from lying lips, from a deceitful tongue. Psalms number 109 verse 1 to 5 says, Be not silent, O God of my praise, for wicked and deceitful mouths are opened against me, speaking against me with lying tongues. They encircle me with words of hate, and attack me without cause. In return for my love they accuse me, but I give myself to prayer, so they reward me evil for good and hatred from my love. God will cover us by his everlasting arms. My friends,
ये भी हमारे जीवन के अंदर होता है। जब हम किसी के साथ अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, किसी को हम प्यार दे रहे हैं, या हमारा व्यवहार सबके साथ अच्छा है, मगर वही लोग जब हमारे विरुद्ध में खड़े होते हैं तो हमें क्या करना है? हमें दोबारा उनके सामने, उनके विरोध के अंदर खड़े नहीं होना, उनको हमें अक्यूज नहीं करना, उनको हमें शाप नहीं देना, मगर यहाँ पर लिखा हुआ है अपने कॉज को, यानी अपने उस कारण को परमेश्वर को सौंप। वी हैव टू कमिट आवर कॉज, one's cause into the mighty hands of God, and He will take care of these all issues. वो सब संभाल लेगा। वो क्या करेगा? वो उनके मुंह को बंद कर देगा, जैसे डैनियल को जब मान के अंदर फेंका गया था, शेर की मान के अंदर, and God thwarted the mouths of lions. परमेश्वर ने किसके सिंहों के मुंह को रोक दिया, चौक कर दिया, ताकि वो डैनियल को नुकसान ना पहुंचा सके। एंड दिस काइंड ऑफ लाइफ वी रियली शुड हैव। ऐसे जीवन को हमें अपने जीवन के अंदर रखना जरूरी है। वी नीड टू कमिट आवर सेल्फ, आवर एवरी डीड्स, आवर एवरी एक्शन टू द हैंड्स ऑफ गॉड ऑलमाइटी। हमें उनके लिए प्रार्थना करनी है, हमें उनके लिए दुआ को करना है, बल्कि हमें उनको अक्यूज नहीं करना। सेकंड थिंग, हाउ टू ओवरकम, मेंटेनिंग वंस इंटीग्रिटी। 1 Peter chapter 2 and verse 12 says, keep your conduct among the Gentiles honorable, so that when they speak against you as evildoers, they may see your good deeds and glorify God on the day of visitation. साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है, अन्य जातियों में तुम्हारा चाल चलन भला हो, इसलिए हो कि जिन जिन बातों से वे तुम्हें कुकर्मी जानकर बदनाम करते हैं, वे तुम्हारे भले कामों को देखकर उन्हीं के कारण कृपा दृष्टि के दिन परमेश्वर की महिमा करें। अजीजों, ये होता है, हमारे चारों ओर ऐसे लोग भी होते हैं, वो नाना प्रकार की बातें करते हैं, उससे हमारे दिल को दुख भी पहुंचता है, हमारा जो दिल है वो टूट भी जाता है। हम हो सकता है रोए भी परमेश्वर के आगे, हो सकता है हम तमाम उन बातों को परमेश्वर के आगे रखें, मगर यहाँ पर लिखा हुआ है कि उन बातों के कारण हमारा चाल चलन ना बदले, उन बातों के कारण हमारी जो इनोसेंसी वो खत्म ना हो, उस बातों के कारण हमारा जो डिवोटी जो हमारे जो जब हम अपने आप को परमेश्वर को दे देते हैं वो खत्म ना हो। परमेश्वर की इच्छा निरंतर हमारे जीवन से पूरी होती रहे। हमें हारना नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें हारने के लिए नहीं, विजयी होने के लिए बनाया है। और वो जो विजेता है, उसने हमें प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, उसके सैक्रिफाइस के द्वारा बनाया है। सिलेंडर तो शैतानी चीज है अजीजों, मगर हमारा परमेश्वर इन सबसे बढ़कर है। तभी हमें इंटीग्रिटी को भी मेंटेन करके रखना है, हमें हारना नहीं, हमें डिस्करेज नहीं होना, बल्कि हमें परमेश्वर की इच्छाओं को अपने जीवन के अंदर पूरी रखना है। झूठ बातें तो लोग गढ़ेंगे, चुगलियां आपकी करेंगे, दूसरों के आगे आपके रेपुटेशन को डाउन भी करेंगे। हो सकता है ये हो रहा हो आपके साथ, आपके जीवन के अंदर, आपकी जॉब के अंदर, मगर आपसे मैं सच सच कहता हूं, आपसे मैं बिल्कुल साफ साफ कहता हूं कि जब तक हम दूसरों के लिए बदलाव की दुआ नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। हमें उन कार्यों को, भले कामों को नहीं छोड़ना, बल्कि प्रभु यीशु मसीह के साथ हमें चलना है। और यहाँ पर साफ साफ वचन कहता है, द डे ऑफ गॉड्स विजिटेशन दे विल ग्लोरीफाई गॉड थ्रू योर डीड्स, थ्रू योर एक्शन। तुम्हारे कामों को देखकर जब परमेश्वर आएगा तो क्या होगा? वो परमेश्वर की बड़ाई को करेंगे कि देखो कितना अच्छा व्यक्ति है, या परमेश्वर की दासी या दास है। फिर हाउ टू ओवरकम, डोंट लिसन टू सलेंडर। जो बदनामी है उनको आप मत सुने। यहाँ पर पहला शमूएल, जो बदनाम करते हैं उनको नहीं सुनना। पहला शमूएल उसका 24वां अध्याय उसका 9वां वचन कहता है, एंड डेविड सेड टू सॉल, why do you listen to the words of men who say, behold, David seeks your harm? यहाँ पर साफ साफ राजा दाऊद कहता है, ऐसे लोगों की बातें तू क्यों सुनता है जो ये कहते हैं कि
राजा जो दाऊद है उसके द्वारा तुझे क्या है नुकसान पहुंचेगा। क्यों सुनता है ऐसी भी बातें? इसका मतलब यह है कि हमें ऐसी बातें भी नहीं सुननी, हमें उनके मार्गों पे भी खड़ा नहीं होना। That's why the scripture says in Psalm chapter 1, straightforwardly says कि वो तो दुष्टों की युक्तियों पर नहीं चलता, ना धर्मियों के मार्ग पे खड़ा होता, ना अधर्मियों के मार्ग में खड़ा होता, ना ठट्टा करने वालों की मंडियों में बैठता है, परंतु वो यहोवा की व्यवस्था से रात दिन प्रसन्न होता है। साफ साफ परमेश्वर के वचन में ये लिखा हुआ है। कभी कभी हम कानों के कच्चे हो जाते हैं, कभी कभी हम विदाउट कंसर्न हम किसी के बहकावे में आ जाते हैं और फिर हम भी क्या करते हैं, दुश्मन हो जाते हैं अपने किसी करीब व्यक्ति का। और जब हम दुश्मन हो जाते हैं तो हम उसके नुकसान को करना शुरू करते हैं। और शैतान यही तो चाहता है, तोड़ना। शैतान हमें स्कैटर कर देता है, हमें तोड़ देता है, हमें बिखरा देता है, ताकि हम परमेश्वर की इच्छा पूरी नहीं करें, बल्कि शैतान की इच्छा को अपने जीवन में आमंत्रित करें और उसके पीछे चलने वाले हो जाए। ये चालाकी हमें समझनी है अजीजों। और ऐसे लोग जो कि बदनामी करते हैं वो भी शैतान की ओर से ही होते हैं, उनको भी हमें समझना है। एंड दैट्स व्हाई वी नीड टू हैव द स्पिरिट ऑफ डिसर्नमेंट। हमें सूझबूझ वाली आत्मा की जरूरत है। अगर है तो प्रेज गॉड, अगर नहीं है तो अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। वी नीड टू bow down before God and we need to ask from God Almighty and He will provide. वो हमें प्रोवाइड करवाएगा, वो हमें देगा। तभी राजा दाऊद जो था, साफ साफ है कि वो साउल की बुराई नहीं चाहता था, साउल की वो भलाई चाहता था। मगर दाऊद से चिढ़ने वाले लोग वो कान भरते रहते थे। तभी यहाँ पर राजा दाऊद कहता है कि तू क्यों दूसरों की बातें सुनता है और क्यों सुनता है ऐसे लोगों की झूठी बातें, क्यों उनको मान लेता है, क्यों दुखी होता है। मुझसे डायरेक्ट बात कर, मुझसे पूछ, परमेश्वर तुझे बताएगा। क्योंकि मेरे अंदर तो कुछ ऐसी चीज नहीं है और सिलेंडर तो मन से ही आता है, मेरे अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं मन का शुद्ध हूँ, तभी परमेश्वर का काम को मैं देखता हूँ और वो मेरे साथ काम को करता है। क्या ये गवाही हम मसीहियों के जीवन में आज पाई जाती है? Do we have this such kind of testimony in our lives, in today's scenario, in today's context? क्या ऐसी चीजें हमारे अंदर पाई जाती है? Proverbs chapter 17 and verse 4 says, "And evildoers listen to the wicked lips, and the liar gives ear to a mischievous tongue." कुकर्मी अन्य बातों की ओर ध्यान देकर सुनता है और झूठा मनुष्य दुष्टों की बात की ओर कान लगाता है। हम भी, मैंने बताया ना, हम भी वैसे बन जाते हैं, हम भी अपने रिलेशनशिप को तोड़ देते हैं, हम भी उस व्यक्ति से दूर हो जाते हैं। जबकि हमें परमेश्वर की प्रेजेंस में एका करना है, हमें कंसर्न करना है कि ये बात सच है या नहीं है। फिर हाउ टू ओवरकम, द लास्ट थिंग, रिजॉइस इन द लॉर्ड ऑल द टाइम, यानी परमेश्वर में हमेशा हमें आनंदित रहना है, चाहे लोग कितनी झूठी बात हमारे खिलाफ क्यों ना गढ़े। मैथ्यू चैप्टर 5 and verse 11 and 12 says, "Blessed are you when others revile you and persecute you and utter all kinds of evil against you falsely on my account. Rejoice and be glad, for your reward is greater in heaven. For so they persecuted the prophets who were before you." मतलब ये कि लोग मेरे विषय में झूठी बातें करें, तुम्हें परेशान करें, तुम्हारे विरोध में बातें करें, तब तुम आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। और जो तुमसे पहले जो भविष्यवक्ता इस संसार के अंदर आए, उन्होंने उनके साथ भी ऐसा ही किया। कितनी महान बात यीशु मसीह यहाँ पर हमें सिखा रहे हैं कि हमें ध्यान ही नहीं देना, मगर हमें परमेश्वर के अंदर, उसकी व्यवस्था के अंदर आनंदित होना। और जैसा कि हमने बताया कि परमेश्वर और हमारे बीच का संबंध हमेशा गहरा होना चाहिए, हमेशा क्लोज होना चाहिए, ताकि लोग ये टेस्टिमनी दें, ये गवाही दें हमारे कार्यों को देखकर कि ही इज और शी इज द मैन और द वुमन ऑफ गॉड, इंस्टेड ऑफ involving us into the political virtues and realms. Never ever, my friends. इससे कुछ नहीं होगा।
इससे सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रक्शन होगा, wrath of God we will face, और यहाँ पर जजमेंट को हम अपने ऊपर लेकर आएंगे। मगर हमें अपने आप को परमेश्वर के अधीन करते हुए चलना है, प्रेयर करनी है, प्रार्थना करनी है, और सबसे बड़ी चीज ये है कि हमें ध्यान नहीं देना और परमेश्वर की व्यवस्था से हमें रात दिन मगन और प्रसन्न होना है। जब यीशु मसीह के बारे में लोग ऐसा कह सकते हैं तो आप और मेरे बारे में लोग क्या कुछ नहीं कहेंगे। हमें इन सबको देखना है और यीशु मसीह को, उसके एग्जाम्पल को आगे रखना है, एंड वी हैव टू फॉलो दैट, वी हैव टू वॉक ऑन द पाथ ऑफ गॉड, इनवाइट गॉड एंड ही विल कम इन, इनवाइट जीसस क्राइस्ट एंड ही विल फिल अस विद द ग्रेस एंड मर्सी एंड द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड। और यहाँ पर अंत में मैं यही कहना चाहूंगा, क्या अभी भी हमारे अंदर ये सिलेंडर या ये प्रकृति पाई जाती है बदनामी करने वाली? क्या परमेश्वर की यूनिटी हम इस चर्च के अंदर लेकर आ रहे हैं? ये कैसे एप्लीकेबल है? किस तरीके से जेम्स का लेटर हमारे आज के कॉन्टेक्स्ट के अंदर भी अवेलेबल है? हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं? हम किस तरीके से परमेश्वर को प्रेजेंट कर सकते हैं? कैसे हम चर्च को तोड़ने की जगह जोड़ सकते हैं? हाउ कैन वी यूनाइट एंड अबाइड आवर चर्च यूनिटी एंड गिव सॉलिडारिटी इनटू द हैंड्स ऑफ गॉड? हाउ कैन वी डू दैट? कैसे हम कर सकते हैं? क्या ये परमेश्वर की इच्छा है चर्च को तोड़ना? क्या यह परमेश्वर की इच्छा है मनुष्य की बदनामी करवाना? नहीं, परमेश्वर ने तो मना किया है। परमेश्वर ने कहा ये तुम्हारा काम नहीं है, ये मैं देख लूंगा, तुम बस अपने काम को करते जाओ, मेरे पीछे चलते जाओ। दैट्स इट, दैट्स इट। अजीजों, आज का जो वचन है आपको एनकरेज करेगा, आपको उत्साहित करेगा। अगर ये चीजें आपके साथ भी आपके जीवन के अंदर हो रही हो, डोंट वरी, just put these all things in front of God. He will take care of these all things. वो परमेश्वर है, उसने वचन दिया है, उसने वायदे को किया है, वो पूरा करेगा। Do not let your heart be troubled. अपने दिल को, अपने मन को आप व्याकुल न करें, बल्कि संपूर्णता से परमेश्वर को देखें। We have to seek God only. We have to seek God and we have to follow God. Whether the world will say anything against us, कुछ भी कहने दीजिए, मगर हमें सिर्फ परमेश्वर के साथ चलना है। और अल्टीमेट हमारे डेस्टिनेशन जो है वो है we will inherit the kingdom of God and we will enjoy the presence of God in our lives. हम परमेश्वर के प्रेजेंस को एंजॉय करेंगे और परमेश्वर के साथ हम बैठेंगे और यूनिटी हमें लेकर आनी है। हमें यूनिटी लेकर आनी है, किसी को डिस्ट्रॉय नहीं करना, किसी के रेपुटेशन को डिस्ट्रॉय नहीं करना। हमें उनको, अगर वो गलत भी हैं तो हमें उनको वचन से समझाना है, बजाय इसके कि उसकी बदनामी हमें दूसरों के साथ करनी है। नहीं, हमें बैठना है, उसको काउंसिल करना है, उसको समझाना है। और तब भी वो नहीं मानता, तब भी ये नहीं लिखा हुआ कि तुम्हें बदनामी करनी, नहीं, उसको परमेश्वर के हाथ में दे देना है। अगर परमेश्वर की इच्छा है तो वो उसके जीवन में पूरी होगी, अगर नहीं है तो नहीं। और अगर कोई हमारे खिलाफ भी कोई बात कर रहा है तो हमें परमेश्वर के हाथों में सौंपने की ज़रूरत है। मैं हमेशा ऐसी करता हूँ अजीज़ों, मैं ध्यान नहीं देता गॉसिप के ऊपर, मैं ध्यान नहीं देता ऐसी बातों के ऊपर, मगर मैं परमेश्वर के हाथ में उन चीज़ों को दे देता हूँ और एट दी एंड परमेश्वर मेरे फेवर में काम करता है। और यही आचरण, यही एटीट्यूड हमारे अंदर होना चाहिए। हम सबको परमेश्वर के साथ जुड़ना है, बिकॉज वी ऑल आर द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, वी ऑल आर द यूनाइटेड बॉडी ऑफ क्राइस्ट, एंड दैट्स व्हाई वी आर कॉल्ड एज गॉड्स पीपल। परमेश्वर आज के इस कलाम पर हम सबको आशीष दे। आइए हम छोटी सी दुआ करें और परमेश्वर के साथ हम अपनी बातों को जोड़ें। आइए हम दुआ करें। धन्य सर्वशक्तिमान, आज के वचन के लिए जो ये वचन आपने हमें दिया, पिता, ये वचन
हमारे जीवन में काम करे। अगर हमारे अंदर ये सब बुराइयां पाई जाती हैं तो पिता हम कन्फेस करते हैं और आपके आगे उन सब चीज़ों को रखते हैं। पिता हम आपके बच्चे हैं, शैतान के नहीं। इन चीज़ों को आप हमारे जीवन से हटाइए और पिता आपकी ग्लोरी को हम देखें, हम विटनेस को अपने जीवन के द्वारा देने वाले हो सकें। और जब पिता आपका आगमन होता है तो हम आपके प्रेजेंस को एंजॉय करें और 100 गुना फल आपके चरणों के अंदर लेके आने वाले हो सकें। Lord, we commit each and every one of us into your mighty hand, and we be blessed by today's scripture, today's Lord sermon, and your will be done in our lives. Thank you, God, for each and everything. Thank you for enabling me to share your words with your people. And Lord, we may grab your words, we may apply your words in our lives, and we may glorify your name on high. Thank you, God, for hearing our prayer. We ask this pray in Jesus' most precious name. Amen. और परमेश्वर का मैं धन्यवाद देता हूँ। और अब हम गीत को गाएंगे जो कि इंग्लिश बुक के अंदर पाया जाता है, I am thine, O Lord, I have heard thy voice। और अपनी सेकेंड ऑफ विक्ट्री को हम इस गीत के दौरान कलेक्ट करेंगे। Now we will collect our second offering. The second of victory will be taken during this song. I am thine, O Lord, I have heard thy voice, and it told thy love to me. But I long to rise in the arms of faith and be closer drawn to thee. Draw me nearer, blessed Lord, to the cross where thou hast died. Draw me nearer, blessed Lord, to thy precious bleeding side. Consecrate me now to thy service, Lord, by the power of grace divine. Let my soul look up with a steadfast hope, and my will be lost in thine. Draw me nearer, blessed Lord, to the cross where thou hast died. Draw me nearer, blessed Lord, to thy precious bleeding side. Oh, the pure delight of a single hour that before thy throne I spent, when I kneel in prayer and with thee, my God, I commune as friend with friend. Draw me nearer, blessed Lord, to the cross where thou hast died. Draw me nearer, blessed Lord, to thy precious bleeding side. There are depths of love that I cannot know till I cross the narrow sea. There are heights of joy that I may not reach till I rest in peace with thee. Draw me nearer, blessed Lord, to the cross where thou hast died.
Draw me nearer, 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 blessed Lord, to thy precious bleeding side. Praise God for the wonderful song. Let us pray for the offering. धन्य से शक्तिमान पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं नजरानों के लिए। इस पे आपकी आशीष बरकत बनी रहे। और पिता हम प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए जो अपने पिता ब्लेसिंग्स में से टाइप को या फिर ऑफरिंग को नजरानों के तौर से आपके चरणों पर लाते हैं, उनको भी आप ब्लेस करें और अपोस्टल मैथोडिस्ट चर्च को आप ब्लेस करें। सारी नीड्स को पिता हम आपके आगे रखते हैं, ये आपके जलाली कामों में इस्तेमाल हो। धन्यवाद यीशु, आपने हमारे नजरानों को ग्रहण किया और हमारी प्रार्थना को सुना। इस प्रार्थना को आपके इकलौते बेटे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मधुमारक नामों के माध्यम से आमीन। अजीजों, अभी वक्त होगा अनाउंसमेंट्स का, कलीसिया इश्तिहारों का, और उसके बाद क्लोजिंग प्रेयर एंड बेनेडिक्शन के साथ हम लोग सब रुखसत होंगे। एंड नाउ मे आई इनवाइट Reverend Dr. Jonah Vishwas to come and to introduce the church announcements, and closing prayer and benediction will be led by our Pastor Sahab. प्रिय मित्रों, हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं आज की सच्ची आराधना के लिए और अच्छे वचन के लिए जो प्रभु के दास के द्वारा दिया गया। और मेरी आशा है कि हम सब ने आशीष प्राप्त करी है। टुडे वी वांट टू प्रेज द लॉर्ड फॉर दिस वर्शिप सर्विस एंड फॉर द वर्ड ऑफ गॉड दैट हैज कम टू अस थ्रू हिज सर्वेंट। एंड आई होप एंड आई बिलीव दैट एवरीबॉडी हैज बीन ब्लेस्ड by today's worship and today's message. Some of the announcement that we have, because of the lockdown situation, we will continue to have our worship by link and YouTube and Zoom every Sunday at 10 o'clock a.m. and I hope that you are participating. Please invite your friends, your prayer partners for this worship service. Every evening हम हर शाम को बाइबल अध्ययन करते हैं और हमारे बाइबल अध्ययन का समय है शाम को 7:30 बजे। मेरी आशा है कि आप उसमें भाग ले रहे हैं। केवल सेकंड और फोर्थ संडे को हम शाम को 7:30 बजे विशेष बाइबल अध्ययन करते हैं जिसका विषय है द बुक ऑफ डैनियल। ऑन second Sunday and fourth Sunday we have special Bible study which commences at 7:30 p.m. and which is on now in the book of Daniel. So please remember that and also inform your friends and the seekers. Friends, now the church office is open. अब हमारे चर्च ऑफिस खुला रहता है वीकडेज में, यानी मंडे टू सैटरडे, एंड टाइमिंग इज फ्रॉम 10:30 a.m. to 5:30 p.m. From 10:30 a.m. to 5:30 p.m. And I request our church members to take avail of this time. And now you can come and deposit your church fund in the church office, your tithe, your church fund, and Sunday offering, and get the receipt right there. So you are invited to visit the church on the weekdays for your depositing your church fund and your Sunday offerings. Dear friends, we need to continue to pray for our country which is passing through a very crucial time of this pandemic, COVID-19, where many people have lost their lives in our country, and worldwide this is on lakhs now. And therefore let us be careful and let us keep ourselves in our home, confine ourselves in our home until it is very urgent. Kindly don't go out from your home. मित्रों, इन दिनों में हमारे पूरे संसार में जो पेंडेमिक की समस्या है कोविड-19 का, जिसकी वजह से दुनिया के अंदर लाखों लोग दुनिया से चले गए। हालांकि हमारे देश में चूँकि सावधानी बरता गया, ऐसा
कैजुअलिटी नहीं हुआ हमारे देश में, लेकिन पूरे संसार में बहुत सी कैजुअलिटीज हुई हैं, इसलिए हम सावधान रहें। हमारे खासकर जो बुजुर्ग हैं 65 एंड प्लस, जो बच्चे हैं 10 साल उससे नीचे, उनके लिए हम सावधान रहें और बहुत ही कम उनको बाहर ले जाएं या जाने दें। हालांकि अब सारी दुकानें खुल गई हैं और मॉल्स खुल रहे हैं और बसेस भी चल रही हैं, ऑटोस चल रहे हैं, लेकिन हम अवॉइड करें बाहर जाना। जब तक कि बहुत ज़रूर ना हो, हमें सामान लेने की आवश्यकता हो, हम जा सकते हैं, अन्यथा घर के अंदर रहें। हम प्रार्थना करें हमारे कलीसिया के हर एक परिवारों के लिए, हर एक माँ बाप के लिए, हर एक जवानों के लिए, हर एक बच्चों के लिए, हर एक बुजुर्गों के लिए, कि प्रभु उनकी रक्षा करें। खास करके हमारे नेपाली कॉन्ग्रीगेशन के लोग, हमारे हिंदू कॉन्ग्रीगेशन लोग और हमारे इंग्लिश कॉन्ग्रीगेशन के लोग। साथ ही साथ मैं ये बताना चाहूँगा कि बहुत ही जल्द हमारे बच्चों के लिए संडे स्कूल का आयोजन किया जाएगा, लिंक के द्वारा, जूम के द्वारा। इसकी सूचना डॉक्टर बिट्रा जॉर्ज आपको जल्द देने वाले हैं। लेकिन संडे को समय होगा संडे स्कूल का शाम को 4 बजे से लेकर के 6 बजे तक। जैसे ही इसकी तैयारी हो जाए हम आपको बता देंगे और आप अपने बच्चों को एनकरेज करें को भाग ले सकते हैं। हम प्रार्थना करें हमारे देश के अगुओं के लिए, हमारे राष्ट्रपति, हमारे प्रधानमंत्री, हमारे राज्यपालों के लिए, मुख्यमंत्रियों के लिए, MPs, MLAs के लिए, पुलिस के लिए, सेना के लिए भी परमेश्वर उन पर अनुग्रह करें, ताकि उनकी मेहनत, उनकी वफादारी देश की तरक्की और उन्नति के कारण। हम प्रार्थना करते रहे हमारे चर्च के तमाम अधिकारियों के लिए, खासकर हमारे बिशप सुब्रत सिंह मंडल, मैडम सुजीता मंडल, हमारे दिल्ली रीजनल कॉन्फ्रेंस के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के लिए, हमारे एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी रेवरेंड सुजीत दास, हमारे कॉन्फ्रेंस ट्रेजरर रेवरेंड वरिंदर कुमार, हमारे हर एक DSS के लिए प्रार्थना करें, हर एक पासवानों के लिए प्रार्थना करें, हमारे लेडी के लिए प्रार्थना करें, हमारे WCS की बहनों के लिए प्रार्थना करें, और हमारे MY के बच्चों के लिए प्रार्थना करें, और मेथोडिस्ट मैन के भाइयों के लिए प्रार्थना करें। ताकि प्रभु हमें संभाले, हमारी सहायता करे, हमारी कलीसिया प्रभु बढ़ती चली जाए। मित्रों, इन दिनों में हमारी जो आराधना हो रही है रविवार की और शाम की बाइबल स्टडी, मैं चाहूँगा कि हम नियमित रूप से भाग लें और दूसरों को एनकरेज करें कि वो भाग इसमें ले सकें। तो वह आशीष मैं धन्यवाद देता हूँ आज की आराधना के लिए और हमारे असिस्टेंट पास्टर के लिए, और जिन्होंने इसमें भाग लिया, हमारे जवानों के लिए, हमारे क्वायर के लिए, उन सबको आशीष का, खास करके मिस्टर प्रकाश जी का, जो बहुत मेहनत करते हैं। इन सारे वर्शिप को आपके तक लाने में उन्हीं की मेहनत है। प्रभु उन्हें स्वर्ग से बहुत आशीष दे, उनके परिवार को आशीष दे, और जितने हमारे जवान और बच्चे हमारे क्वायर के हैं, जो हमारे इस वर्शिप में या बाइबल अध्ययन के लिए गीत देते हैं या गीत भेजते हैं, हम सबको प्रभु आशीष उनकी सहायता करें। आइए हम प्रार्थना करें, इस आराधना को समाप्त करें। Let us pray. Heavenly Father, I want to thank you and praise you for this worship today we have had, Lord, in our AMC, Lord, through this link. We thank you, Lord, for the message that has come to us. We thank you, Lord, for your grace and mercy upon our lives. We pray, Lord, for each family of our congregation, old, young, children, Lord, each parents. We pray, Lord, let your grace be upon us. तो हम चाहते हैं कि आपकी दया, आपकी करुणा प्रभु इस कलीसिया पर बनी रहे प्रभु जी। इन कठिन दिनों में प्रभु आप हमारे अगुवाई करें, ताकि हम आप में बढ़ते चले जाए, हमारे जीवन प्रभु आपको पसंद आए, आप उससे खुश हो सके। प्रभु हमारे अंदर बहुत सी कमियां हैं, प्रभु को माफ़ करें प्रभु जी, आप हमें बढ़ते करें, ताकि हम प्रभु आपके योग्य ठहरे और हमारा जीवन, हमारी सेवकाएँ आपको ग्रहणीय हो सके। इस आने वाले सप्ताह के लिए आप हमें तैयार करें। आज के आराधना में फिर से आपको धन्यवाद करते हैं। हमारे धन्यवाद को स्वीकार करें, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रोड टू कृपा का हमें सारे के साथ इस समय और हमेशा तक होती रहे।